ذرا لاؤ چیک کریں. یار کاشف سر تمہارے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا. کیا ہوا سر؟ کسی نے مرغیوں کو تیتر کے پار لگا کے اڑا دیے اور تم انہیں تیتر سمجھ کے شکار کر لائے ہو. سر پارٹنر ویسے تو ہر کام کے لیے عقل کی کافی ضرورت ہوتی ہے لیکن فراڈ اس کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آئی بلیو آپ کو میس میں 2 دن بعد آنا تھا, اب آپ 6 دن بعد آئیں گے. What the hell? السلام علیکم. یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ ممی آپ کب آئی؟ مجھے اپنے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی آپ نے؟ اور یہ کیا حال بنا رکھے آپ نے اپنا؟ اتنا ویٹ کین کر لیے؟ آرام سے شناز, آرام سے. یہ بھی ابھی آئی ہیں, آپ بھی ذرا سانس لے لو, کچھ کھا پی لو, پھر بعد میں باتیں کرتے رہنا. آئی تھنک آئی ول گو اینڈ ریسٹ فار اے وائل. سی یو بوتھ ان دی ایوننگ. آہو, کوئی ایسا فوجی بھی ہے جو دوپہر میں نہ سوتا ہو؟ ان کی 30 سال کی سروس میں نے تو کسی ایسے فوجی کا ذکر نہیں سنا. اور خیر ان کی تو عمر بھی آرام کی ہے. چلے ممی, اب مجھے جلدی جلدی بتائیں, ہاؤ یو اینڈ ہاؤ از انگلینڈ؟ I'm fine and England is the same. تم بتاؤ تم کیسی ہو اور کام کیسا چل رہا ہے؟ A1. میں بھی اور کام بھی. دن تو سارا اسکول میں بچوں کے ساتھ گزر جاتا ہے اور شام کو آہو آنٹی اور میں کسی نہ کسی چکر میں مصروف رہتے ہیں. تم اتنی جلدی کیوں آ گئی انگلینڈ سے واپس؟ تمہیں اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنی چاہیے تھی. وہاں تم کوئی بھی کریئر چوز کر سکتی تھی. ممی, میں واپس کسی موڈ کی وجہ سے نہیں آئی ہوں. میں وہاں سے اپنی پڑھائی ختم کر کے ہی یہاں سیٹل ہونے آئی ہوں. اسپیشل ایجوکیشن ہی میرا کریئر ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ آئی ایم کوالیفائڈ ٹو ڈو. شناز, یہ تو کوئی کریئر نہ ہوا. ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے. دیکھو میں نے بھی تو شادی اور فیملی کے بعد ہی کریئر. ممی, آپ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے. آپ نے سب کو چھوڑ کے اپنا کریئر بنایا اور میں سب کو اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں. آپ اپنی ڈیسیژن سے کنٹینٹ ہیں اور میں بھی اپنی سے بہت خوش ہوں. I'm glad to see you settled and happy. پر مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے میرے جانے سے تمہیں تکلیف تو بہت ہوئی ہو. چھوڑے ممی, اٹس ٹو لیٹ اینی وے اینڈ آئی ایم اے بگ گرل ناؤ. شروع میں تو میں بہت ناراض تھی لیکن اب مجھے آپ پہ ترس آتا ہے کیونکہ اصل لاس تو آپ کا ہوا ہے. تم میں کوئی بات بھی میری والی نہیں ہے. ممی, جب بھی کسی نے میری تعریف کرنی ہوتی ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے تمہیں کوئی بھی بات تمہاری ماں والی نہیں ہے. اچھا چلو آؤ لنچ پہ چلتے ہیں. شام کو میری فلائٹ بھی ہے ڈھاکہ کی. ہاتھ اوپر, پہچان کے لیے آگے بڑھ. روک. جان بلی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کاشف صاحب کو ٹرپ ہے؟ جی صاحب. پتا تھا مجھے
बिल्कुल पता था मुझे. बेगम तो फौरन उठाता है ना तू. जितना बड़ा जनवरी तू होगा ना बच्चू. जो मेरी बेगम बनने वाली है ना, उसका मुरीद बनने में भी कोई बुराई नहीं है. अरे अरे, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? आई एम सॉरी, मैंने आपकी गेम डिस्टर्ब की. आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी, यहाँ से जब फारिग हो जाए तो अपने टैंकों का एक चक्कर लगा लीजिएगा. आपके एक टैंक का कपोला खुला हुआ है. मैं खुदा न खास्ता आपको ये बताने यहाँ नहीं आया कि एक टैंक की कीमत क्या होती है. सिर्फ ये अर्ज करना थी कि हम यहाँ बॉर्डर एरिया में हैं. दुश्मन का कोई आदमी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट आपके किसी टैंक में एक्सप्लोजिव रख गया तो आपकी गेम डिस्टर्ब होगी. यू गॉट द इन्फॉर्मेशन नाउ? कैन आई लीव नाउ? मैं कम इन सर? यस. अस्सलाम वालेकुम सर. सर आपसे बात करनी थी. जूतों के तस्मे में हाथों से खोल रहा, कान मेरे बिल्कुल फारिग हैं. स्पीक. सर मैं फौज छोड़ना चाहता हूँ. जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया होगा, वरना इतनी अच्छी बात तुम खुद नहीं सोच सकते. सर जो इन्वॉल्वमेंट और जो परफॉर्मेंस आप मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको कभी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि फौज में अपनी मर्जी से आया ही नहीं हूँ. यार, एज फार एज माई नॉलेज गोस, फौज में जबरी भर्ती तो अभी शुरू नहीं हुई. सर ये जबरी भर्ती तो है. मेरे वालिद को पता था मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मगर फिर भी वो मुझे और मेरे बेटे को फौज में भेज के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं. सर एम्बिशन उनका है और सजा मुझे मिल रही है. काश तुम्हें कोई ये समझा सके कि सजा तुम्हें नहीं, इस फौज को मिल रही है, और मजीद मिलेगी अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकला. सर आप मेरे फादर को समझाएं. तुम्हारे फादर को मैं समझाऊं? यू कैन हैव द कैंप्स टू. आई जस्ट बी बैक. फौज छोड़ के क्या करोगे? सर कुछ भी कर लूंगा, इससे तो बेहतर ही होगा. फौज में कितना पढ़ के आए थे आप? सर सबकी तरह एफए करके आया था. तुम्हारी बातें तो किसी एफए पास की नहीं है. मैं तो समझा था कोई फिजिक्स वगैरह में पीएचडी की होगी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर किया होगा. बाय द वे, एफए में आपके कितने नंबर थे? सर सेकंड डिवीजन थी. एक्सरसाइज के बाद मेरे साथ चलिएगा, आपको कुछ लड़कों से मिलवाऊंगा जिनकी एफए में भी फर्स्ट डिवीजन थी, बीए में भी और एमए में भी, और अभी तक पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढते फिरे. सर मैं भी आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो सिर्फ मैट्रिक हैं, और वो भी थर्ड डिवीजन में, मगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें. तुम्हें मिलवाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो कौन लोग हैं. मिस्टर सो एंड सो पटवारी गुजरावाला, मिस्टर सो एंड सो क्लर्क इनकम टैक्स, मिस्टर सो एंड सो पुलिस कांस्टेबल. ऐसे लोगों के नाम लोगे ना तुम, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कंपैरिजन प्रोफेशंस के दरमियान में नहीं, बल्कि ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान में. बेईमान होने का फैसला तुम कर लो, फौज भी छोड़ने की जरूरत नहीं. तरीके मैं तुम्हें बता दूंगा. बेईमानी की गुंजाइश तो मस्जिद के चंदे में भी निकल आती है. कंपेयर ही करना है तो अपने आप को किसी ऐसे लेक्चरार से करो जो एमए में फर्स्ट क्लास लेकर भी हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा हो. सर तो पूरी सोसाइटी की सोच बदली है, फौज की कैसे नहीं बदलेगी? किस पागल ने तुम्हें ये सबक पढ़ा दिया है कि क्योंकि सोसाइटी खराब हो गई इसलिए हमें भी खराब होने का हक मिल गया? सर देखो यार, इस वक्त मुझे बहुत सा गुस्सा आ रहा है. तुम्हारे और मेरे ख्यालात कभी नहीं मिल सकते. हर वक्त मांगते रहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फौज उन लोगों के लिए है जो कुछ देने पे भी बिलीव करते हो. यू बेटर लीव नाउ. सर देखिए, अदिल यहाँ रहेगा तो उसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी. 4-5 घंटे के बजाय पूरा दिन अटेंशन मिलेगी. उसके बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और वो आप लोगों के साथ कब वक्त गुजारेगा? हम हर वीकेंड पर उसे ले जाया करेंगे. आप प्लीज हमें गलत ना समझ लें. वो हमारा बेटा है, उसे हम यहाँ फेंकने नहीं आए. अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ही ज्यादा सोशलाइजिंग करनी पड़ती है. हर किस्म के लोगों का हमारे घर आना जाना लगा रहता है. अबीर की वजह से हमें काफी परेशानी हो जाती है. उसका हुलिया, उसका बिहेवियर, यू नो व्हाट आई मीन. अदील की जरूरत तो एक आया भी पूरी कर सकती है. मेरे बाकी बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है. बिटवीन माई ओन लाइफ एंड माई अदर चिल्ड्रन, आई जस्ट कांट फाइंड टाइम फॉर हिम.
मिसेस अली, अदील को इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिसेस गिलानी, देखें अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें ताकि हम कोई और स्कूल देख लें। नॉट एट ऑल, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कमरे हैं जिनको हम हॉस्टल टाइप फीस बनाना चाह रहे हैं। बस कुछ देर इंतजार कीजिए, इट विल बी रेडी। ओके फाइन, अगर इस सिलसिले में मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बता दें। ऑफ कोर्स, आपकी हेल्प के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, प्लीज लेट मी नो। शहनाज, तुम बिला वजह अदील के पेरेंट्स के साथ बहस करना चाह रही थी। अगर वो अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते हैं तो फिर हम क्यों सजेस्ट करें कि वो घर में रहे? इसलिए मैडम क्योंकि वो उसके लिए फेमिलियर एनवायरनमेंट है।